Hello students, this is English class and we will see English Kumar Bharati Standard 10 1.2 The Thief's Story. So welcome to everyone in today's English class and we will see this story written by Ruskin Bond. So Ruskin Bond is an Indian author of British descent. It means he was originated from British. So he's a Britisher, but um, he lives with his adopted family. So he's an Indian one. Okay, he lives with his adopted family in Landore in Mussoorie, India. So it is a northern city. So he lives there with his adopted family. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. So he plays most important role in children's literature. Okay, so he got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. Then he was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So he is a very great author. Okay, so we will see now the thief's story. So this story is about behavior. Our behavior is important and how it change bad person into good person. Okay, so Ruskin Bond narrate here one character and how he turn himself automatically with the behavior of another person. Okay, so this is a story about 15 years old boy and how he was, then how he changed. Okay, so this is story about behavior and it gives us knowledge, it gives us message that we have to be good with other one. Okay, so we will learn this story now. Very beautiful story. So here narrator narrate a boy who was 15 years old and that 15 years old boy told us his story. So he let's begin the story now. I was still a thief when I met Anil. So he told us that he was a thief when he met a person whose name was Anil, and though only 15, even if he was 15 years old, I was an experienced and fairly successful hand. So he told us about he was very experienced older thief and he was fairly successful hand. Okay, then Anil was watched a wrestling match. When I approached him, he was only 25, about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. So here Anil told his experience and about observation. Okay, तो अनिल देखता है कि एक रेसलिंग देखने वाला इंसान वहाँ पे खड़ा है, वो अनिल है. ओके, सो वो अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड का होगा, एक लंबा सा लीन इट मीन्स पतला सा पर्सन वहाँ पे वो खड़ा था और रेसलिंग वो देख रहा था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो ऐसे दिख रहा था कि बहुत ही ईजी पर्सन है, बहुत ही दयावान है और सिंपल पर्सन है. मेरे पर्पस के लिए वो ईजी था. ओके, तो उसका पर्पस क्या था? चोरी करने का. I hadn't had much luck of late and though I might be able to get into the young man's confidence. तो अभी तो अब कुछ दिनों में मेरा जो काम है, मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं इस पर्सन को क्या करूँ, पर्सन का जो है कॉन्फिडेंस में वो जीत लूँगा. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So यहाँ पे जो बच्चा है वो 15 साल का बच्चा, तो वो अनिल को बोलता है कि तुम तो रेसलर की तरह ही दिखते हो. कैसे? वो इतना रेसलर की तरह नहीं दिखता था, है ना, पतला सा था, लंबा सा था, उसकी कुछ बॉडी बीडी भी नहीं थी, फिर भी वो उसकी झूठी तारीफ करता है. फ्लैटरी मीन्स इनसिंसियर प्रेज.
ओके। तो उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए उसे बहुत सिर पे बिठाया है, कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे बोलने के लिए वो झूठी झूठी तारीफ करता है कि तुम तो एक रेसलर की तरह ही दिख रहे हो। उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए वो ऐसा सब कुछ बोल देता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थीम। तो उसने भी वैसे ही रिप्लाई दिया कि तुम भी वैसे ही दिखते हो, एक रेसलर ही दिखते हो। सो उसका जो रिप्लाई जो था वो उसने वो बच्चे को क्या कर दिया, पुट मी ऑफ, इट मीन्स टू ऑफेंडेड, बहुत ही बैड फील करवाया। ओके क्योंकि वो भी कैसा था, एक रेसलर की तरह तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही पतला सा था और छोटा भी था। ओके वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो वो भी थोड़ा बड़ापन दिखाने के लिए हम्बल मैनर में क्या करता है, विदाउट बूस्टिंग इन एन हम्बल वे ही सेड दैट आई डू रेसलिंग। ओके तो मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ, ऐसे वो बोल लेता है वो छोटा बच्चा। व्हाट्स योर नेम? सो अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो जो बच्चा है वो हमेशा नया नया नाम लेता था, बताता था, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉय है उससे बचने के लिए, और दूसरी एक बात थी पुलिस से भी बचने के लिए। हर एक महीने जैसे नया कैंडिडेट मिलता वैसे वो अपना नाम बदल देता। तो अभी भी उसने अपना सच्चा नाम नहीं बताया, हरी सिंह, ऐसे वो खुद का वो झूठा नाम बताता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So grunting it means making low grunter sounds. तो वो एक दूसरे को फेंक रहे थे, उठा रहे थे, और वो करते करते जो आवाज़ें करते थे तो उसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। ओके तो वो उनके बारे में बोलने लगा। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो मेरे पास तो उनके बारे में बोलने के लिए कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो जो हरी सिंह है, जो बच्चे ने अपना झूठा नाम बताया था, तो वो हरी सिंह सिर्फ सुनने का काम करता है, और अनिल जहाँ पे जाता है तो उसे वो फॉलो करता है, लेकिन ऐसे फॉलो करता है कि वो जनरली कैजुअली ही इधर उधर जा रहा है, कि जानबूझ के अनिल के पीछे नहीं जा रहा है। सो बाद में थोड़ी देर में अनिल का ध्यान जाता है वो बच्चे की तरफ, तो वो बोलता है हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. तो वो अपीलिंग स्माइल यानी एकदम अट्रैक्टिव स्माइल देता है और बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू। अनिल रिप्लाइड हिम, आई कांट पे यू। सो वो इतना कुछ काम नहीं करता था कि खुद के लिए कोई नौकर रख सके, इसलिए वो बोलता था कि इसलिए उसने बोला कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। सो एक मिनट के लिए वो खुद के लिए ही सोचता है हरी सिंह कि क्या मैंने मिसजज कर दिया किसी मैन को, अब तक तो नहीं किया था। तो ऐसा खुद ही सोचता है। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? हरी सिंह ऐसे उसे पूछता है अनिल को। कैन यू कुक, तो हरी सिंह बोलता है क्या तुम खाना पका सकते हो? अगर तुम पका सकते हो यानी कुछ ना कुछ काम तुम अगर करोगे तो मैं शायद तुम्हें खिला सकता हूँ। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो दूसरा वो झूठ बोलता है, एक तो अपना नाम गलत बताता है और दूसरा वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो वो अपने रूम में लेके जाता है और उसे बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हैं। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रेट डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। सो वो जो खाना हरी सिंह ने बनाया था तो वो खाना भी बिल्कुल
अच्छा नहीं था। तो वो अनिल क्या करता है, स्ट्रे डॉग्स को वो खाना खिला देता है, यानी जो रास्ते के इधर उधर घूमने वाले बेवारस जो डॉगी होते हैं उन्हें वो खाना खिला देते हैं। और इससे क्या बोलते हैं, टू बी ऑफ, इट मीन्स गो अवे, लीव। सो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो खाना भी अच्छा नहीं पका सकता, तो मैं फिर कैसे वो तुम्हें मेरे यहाँ पे काम पे रखूँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, स्माइल्ड इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। सो वो मैं क्या कर रहा हूँ अब, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है। सो हंग अराउंड टू वेट at a place to stay near a place or person. So I just stay here for he told me that please don't go. So I stay there waiting for his smile or his appearance for me. तो वो जो है वो वहाँ पे ही खड़ा रहता है कि वो मुझे कुछ ना कुछ अपीयरेंस दे, कि हाँ बोले, तुम रुको बोले, और मैं अपनी जो अपीलिंग स्माइल है, अट्रैक्टिव मैनर वाली जो मेरी स्माइल है अट्रैक्ट करने वाली, वो उसे दे रहा था। लेकिन वो खुद को कुछ रोक ही नहीं पा रहा था हंसने के लिए, है ना, क्योंकि ये इसका बिहेवियर ही वैसा था। ओके, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। सो थोड़ी देर के बाद उसके बाद क्या होता है, तो मैं उसके हाथ से मुझे मेरे सिर पे मारता है। पैटेड मीन्स अ क्विक लाइट टच विथ हैंड। सो वो मेरे सिर पे थोड़ा सा मारता है और मुझे बोलता है नेवर माइंड, आई वुड टीच यू how to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write full sentences and to add numbers. तो वो उसके बाद वो बहुत सारी बातें सिखाता है उसे, जैसे कि खाना पकाना सिखाता है और राइटिंग वर्क्स भी सिखाता है। अब वो उसे मैथ भी सिखाने वाला होता है। आई वॉज ग्रेटफुल। तो उसके बाद हरी सिंह को जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। नो लिमिट मीन्स एंडलेस। सो उसे लगता है कि चलो मैं अब एक एजुकेटेड पर्सन की तरह मैं लिख सकूँगा, पढ़ सकूँगा, है ना, कि और मैंने बहुत कुछ अचीव यहाँ पे कर लिया था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो उसे जो है हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता था, और मैं सवेरे खाना बनाना, चाय वगैरह बनाना, ये सब कुछ करता था। और जो ग्रोसरी वगैरह लानी थी, जो काम मुझे करना था वो करने के लिए जब मैं बाहर निकलता था, तो उसमें से मैं चोर था तो मैं चोरी तो का काम तो करूँगा, तो ₹1 एक दिन में वो कमाता था, मैं अपना प्रॉफिट निकालता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। डिड नॉट सीम टू माइंड मीन्स नॉट वरीड। तो शायद अनिल को पता था कि मैं इस तरीके से पैसे जो है वो बना रहा हूँ, मेड कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो अनिल था वो इतना टेंस नहीं था, बिल्कुल भी वरीड नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इस मीन्स इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स। तो अनिल जो है वो पैसे कैसे रेगुलर ही नहीं कमाता था, है ना, उसमें इरेगुलर था वो मनी पैसे कमाने में, यानी उसका रेगुलर कुछ भी काम नहीं था। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के बारे में टेंस रहता था कि मुझे अपना मेरा नेक्स्ट चेक कब मिलेगा, क्या करूँगा तो मुझे मिलेगा, ये सब के लिए टेंस रहता था। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेता था। वो क्या करता था, बाहर जाता था और जो भी उसके पास पैसे आए हैं उससे वो सेलिब्रेट करता था, ऐश करता था। इट सीम्स ही वर्क्स फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। इट मीन्स क्वियर मीन्स स्ट्रेंज। ओके, तो मुझे पता चला कुछ ही दिनों में कि वो जो है अनिल जो है वो मैगजीन्स के लिए कुछ तो भी लिखता था और उससे ही वो पैसे कमाता था।
ओके, ये बात मेरे लिए क्या थी, स्ट्रेंज थी कि एक मैगजीन पे कुछ तो भी लिख के उसे पैसे मिलते थे. वे टू मेक अ लिविंग, इट मीन्स टू अर्न मनी, सपोर्ट्स वन सेल्फ. तो ये सब बातें उसे सपोर्टिव थी, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए ये तो अच्छी बात नहीं थी ना. यानी पैसे कमाने का ये तो कोई ज़रिया नहीं हो सकता. ऐसे वो चोर, देखो 15 साल का बच्चा इतनी बड़ी सोच रखता है. वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. तो एक शाम को क्या हो गया कि वो अनिल पैसों का एक बंडल लेके आया और बोला कि पब्लिशर को मैंने एक बुक बेचा है, पब्लिश दिया है, तो उसी के ये पैसे हैं. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो शाम को जो है वो हरी सिंह देखता है कि वो टक करता है, यानी पुश करता है वो जो बंडल जो है पैसों का, वो मैट्रेस के अंदर ऐसे डालते हुए. कौन देखता है? हरी सिंह देखता है. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. Line of work, it means the principal activity in your life that you do to earn money. तो अब तक जो है वो हरी सिंह ने अनिल के लिए 1 महीना लगभग काम किया था. तो शॉपिंग से जो वो चीटिंग करता था उसके सिवा उसने कुछ भी चोरी नहीं किया था, है ना. सो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. एक्चुअली उसके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चोरी कर पाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था. ओके, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो मेरे पास जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसने मुझे रूम की की भी दी थी और मुझ पर बहुत ज़्यादा वो भरोसा करता था. लेकिन फिर भी मैंने शॉपिंग के अलावा कोई भी चीटिंग नहीं की थी, कोई भी चोरी नहीं की थी. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. तो यही वो वजह थी कि उसके पास की कोई भी चीज़ चोरी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. अब देखो हरी सिंह की सोच क्या है. भले ही वो एक चोर है, फिर भी वो क्या सोचता है. देखो, एक 15 साल का बच्चा, उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं. तो वो बोलता है इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. जो लालची इंसान होता है उसे लूटना इजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. तो वो बोलता है कि देखो, एक लालची इंसान को लूटना इजी है, लेकिन केयरलेस मैन को लूटना इतना इजी. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. केयरलेस मैन को रॉब करना क्या है, डिफ़िकल्ट है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और वो इतना केयरलेस होता है तो हमें चोरी करने का, उसे लूटने का कोई मज़ा ही नहीं आता है. ओके, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. रियल वर्क मीन्स हियर इट मीन्स हरी सिंह was a thief. Okay, so that work is important for him. Okay, तो वो बोलता है कि अब यही वक्त है कि जिसमें अब मैं मेरा रियल वर्क करूँ. मेरा जो रियल वर्क है चोरी करने का, अब यही वो समय है कि मैं क्या करूँ, मेरा काम करूँ. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब मैंने 1 महीना हो गया था, कुछ भी चोरी नहीं किया, कहाँ पे भी नहीं किया. अनिल के लिए मैंने ऑनेस्टली काम भी किया. तो मैंने खुद को ही बोला कि अब यही एक समय है कि क्या करना है, मुझे मेरा काम करना है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी 1 महीने से कुछ भी चोरी करने की. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो वो बोलता है कि मैं चोरी ना करूँगा तो ये क्या करेगा. अब उसे रीज़न एक मिल जाता है, देखो, कि मैं चोरी नहीं करूँगा तो फिर भी क्या होगा, ये लेगा ये पैसे अपने दोस्तों के साथ दोस्तों में उड़ा देगा, है ना. और मुझे जो पेमेंट देना चाहिए वो भी नहीं देगा. तो फिर काम करके मैं ये पैसे बचा के करूँ भी क्या, और मेरा तो काम ही है चोरी करना. ओके, ऐसे वो बच्चा सोचता है. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. तो
शाम को जो है, रात को अनिल क्या हो गया था, सो गया था। मूनलाइट जो है वो बालकनी से अंदर आ रहा था, और ऐसे सोचते 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 मैं फ्लोरिंग पे बैठा हुआ था, और क्या करूँगा क्या नहीं, सिचुएशन क्या है, वो सब कंसिडर कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं क्या कर पाऊँगा, 10:30 की रात की जो लखनऊ एक्सप्रेस है रेलवे, तो वो पकड़ के मैं लखनऊ जा सकूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अब मैं जो है वो अनिल के पास जाता हूँ, उसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलेंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वेयर मोर स्केयर्स। तो अनलाइंड मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। ओके, तो वो बोलता है जब मेरी उसकी तरफ नज़र गई, अनिल की तरफ, तो मुझे दिखाई दिया कि उसके चेहरे पे कोई भी टेंशन नहीं था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि मेरे पैसे चोरी होंगे या कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी उसके फेस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं थे। तो उससे ज़्यादा मेरा ही चेहरा बहुत ज़्यादा वरिड था, बहुत टेंस था, और बहुत ज़्यादा लाइन मेरे ही चेहरे पे दिख रहे थे। माई हैंड सील्ड under the mattress, stretching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. अब मैंने जो है मेरा हाथ वो मैट्रेस के अंदर सील्ड कर दिया और पैसे निकाल लिए। अब ये सब करते हुए मैंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं किया। ओके, अनिल साइज इन ही स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। तो उसने जो है वो अपनी एक साइड से दूसरी तरफ यानी मेरी तरफ वो पलट गया। ओके, आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैं क्या हो गया, सडन शॉक हो गया उसकी मूवमेंट देख के ही, और रूम से जल्द मैं भाग के निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। जैसे ही मैं रोड पे आया तो मैं क्या करने लगा, दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास। तो मैंने जो है मैं वो जो नोट्स है वो कहाँ पे रखे थे, जो मेरे पैजामा का नाड़ा है उसे मैंने वो बांध के रख दिए थे। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। मैंने रोड पे आने के बाद जब मैं दौड़ा तो थोड़ी देर दूर जाने के बाद मैं स्लो डाउन हो गया, नोट्स निकाले और उसे काउंट करने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s। तो मैं जो है वहाँ वो जो नोट्स थे वो 600 रुपीज़ थे, 50 के ऐसे यानी 12 नोट्स वहाँ पे थे। Then I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो मैं ऐसे सोचने लगा कि मैं तो 1-2 हफ्ते एक अर्बन कंट्री का जो मैन होता है, रिच पर्सन, उस तरीके से मैं 1-2 हफ्ते तो कैसे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अरबियन जो है वो वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो मैं उसी तरीके से 1-2 हफ्ते तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे वो हरी सिंह जो है वो बच्चा सोचता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. It means I had never bought a ticket in my life. अब वो तो चोर था, वो कैसे टिकट लेगा ना। तो वो बोलता है कि मैं जैसे ही स्टेशन में पहुंचा तो टिकट निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पे सीधे ही दौड़ते हुए चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लेकिन क्या हो गई थी, लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जस्ट निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो वो बोलता है जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो निकल ही रही थी, लेकिन मैं वो पकड़ सकता था, वो कोई भी कैरियज में चढ़ सकता है, कोई भी डिब्बे में मैं चढ़ सकता था, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही अनकम्फर्ट फील कर रहा था, बहुत ही हेजिटेट हो गया था, और कुछ ऐसा रीज़न था लेकिन मुझे पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने जो है अपना चांस लखनऊ एक्सप्रेस में चढ़ने का वो गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone
ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म. डेजर्ट इट मीन्स एम्प्टी. तो जैसे ही ट्रेन जा रही थी तो मैं वैसे कि वैसे ही खड़ा था, मैं चढ़ ही नहीं पाया. और ट्रेन जाने के बाद मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही वहाँ पे खड़ा था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं थी, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं लखनऊ एक्सप्रेस में जाऊँगा करके, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प. तो देखो, वो 15 साल का लड़का बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी कि फ्रेंड जो है, मेरा ऐसा बिलीव था कि फ्रेंड जो है वो क्या है, अपने लाइफ में हेल्प करने की बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रबल्स ही लाते हैं. इसलिए मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे, इसलिए मेरा कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी स्टेशन के कोई होटल में भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि क्यूरियस, किसी को मैं क्यूरियस बनाऊँ उसे जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उकसाऊँ, ईगर टू नो. क्यूरियस इट मीन्स ईगर टू नो. तो मैं किसी को ऐसे उकसाऊँ, ऐसे भी नहीं मेरा मन कर रहा था कि मैं अच्छे होटल में, एक छोटा सा लड़का अच्छे से होटल में कैसे रह रहा है ना. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. एक ही पर्सन मेरे लाइफ में, अब तक के लाइफ में मुझे एक ही पर्सन पता था जो जिसके लिए मैं काम करता था, और अभी मैंने उसके यहाँ उसकी चोरी भी की थी. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार. अब स्टेशन छोड़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बाज़ार में से जा रहा हूँ. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब मेरे जो है अपने शॉर्ट करियर में चोरी के, मैंने एक कुछ बातें स्टडी की थी, लोगों के चेहरे का फेस रीडिंग किया था. तो उसमें से एक बात मुझे पता चली कि द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. तो जो ग्रीडी इंसान होता है, लालची इंसान होता है, उसके मन में हमेशा डर रहता है. और जो रिच होता है वो गुस्सा करता है. और जो गरीब होते हैं बेचारे, तो वो जो है वो क्या, अपने पास एक्सेप्टेंस ये पावर रखते हैं. ओके, बट आई न्यू दैट ऑन हिज फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. तो वो बोलता है कि अगर अनिल के बारे में ऐसा कुछ हुआ, उसे अगर पता चला कि उसके जो पैसों की है वो चोरी हो गई, तो उसके चेहरे पे ये सब कुछ नहीं दिखेगा, एक ही चीज़ दिखेगी, और वो क्या है, दुख दिखेगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो वो पैसे गए, इसका दुख नहीं होगा, तो उसने जो ट्रस्ट दिया था हरी सिंह को, वो ट्रस्ट चला गया, ये दुख उसके चेहरे पे रहेगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन मेडियन एंड सैट डाउन ऑन द बेंच. तो मैं जो है वो क्या करता हूँ, मैं चलते चलते सोचते सोचते ऐसे जा रहा था, तो मैं खुद को पाता हूँ एक मीडियन में, और मैं जो है वो ग्रासी एरिया जो है वहाँ पे मैं खुद को पाता हूँ, और वहाँ पे जो बेंच था वहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ. द नाइट वॉज चिली, इट वॉज रियली नवम्बर, एंड अ लाइट ड्रिजल added to my discomfort. Drizzly means light rain falling in very fine drops. तो ये जो है वो नवंबर का मंथ शुरू है, और क्या है, थोड़ी बारिश आ रही है. Soon it was raining quite heavily. थोड़ी देर में क्या होगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश आने लगी. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. तो मेरे जो कपड़े हैं वो मुझे चिपक रहे थे, और मेरे चेहरे पे पूरी बारिश जो है वो आ रही थी. ओके, आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. तो मैं जो है वो पीछे बाज़ार की तरफ चला गया, और क्लॉक टावर जो है उसके नीचे मैं बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. अब क्लॉक में जो है वो मिडनाइट शो कर रहे थे, यानी 12 बज चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैं थोड़ा नोट्स के लिए, पैसों के लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा था, क्योंकि दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन. वो बारिश की वजह से क्या हो गए होंगे, पूरे के पूरे ख़राब हो गए होंगे. अनिल्स मनी, और वो किसके पैसे थे, अनिल के. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or
₹3 to go to the cinema, but now I had it all. अब अनिल जो है जिसके वो पैसे थे वो शायद मुझे क्या करता कि 1-2 रुपए दे देता और बोलता कि चलो जाओ आज तुम क्या करो, सिनेमा हॉल में कोई तो भी सिनेमा देख के आओ। लेकिन वो अब किसके पास थे, पूरे के पूरे हरी सिंह के पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मैं जो है वो उसके लिए खाना भी नहीं बना पाऊँगा यहाँ से चला गया तो। और जो है मैं लिखने की जो सीख रहा था, पूरे सेंटेंसेस अब मैं सीखने वाला था, वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो वो क्या सोचता है कि ये सारी अच्छी बातें मैंने मिस कर दी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं जो है वो चोरी के याद में, चोरी करने के इसमें मैं ये सब अच्छी बातें जो है, जो भी मैंने सीखा था और मैं सीखने वाला था अनिल से, वो सब मैं क्या हो गया था, भूल गया था। whole sentences I knew could one day bring me more than a few ₹100. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be catch. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब इतनी अच्छी बातें मैं अनिल के पास से सीख रहा था, लिखना, खाना बनाना, पढ़ना, है ना, एक अच्छा जेंटलमैन बनने की तरफ मैं जा रहा था। यानी जो मैं चोरी करके डर डर के रहता था, ये मुझे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सब कुछ बातें मैं अनिल से सीखने वाला था। तो ये सब बातें उसे याद आती है और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस अनिल के पास जाऊँ। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. तो ये तो बहुत इजी था, चोरी करना तो इजी है, लेकिन आगे के पर्सन को पता ना चलते हुए भी उसे उसकी चीज़ वापस करे, ये थोड़ा क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो वो सोचते सोचते हुए वो नर्वस फील कर रहा था और वो जाने की सोच रहा था, फिर भी वो जाने की सोच रहा था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, द स्टूड इन द डोरवे। मैं जो है वो रास्ते पे खड़ा था, रास्ते में ही खड़ा था और मैंने स्लोली जो है डोर ओपन किया इन क्लाउडेड मूनलाइट। और अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। मैंने जो है वो क्लाउडी सीन जो है, बाहर एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, क्लाउडी ही है, बारिश भले ही गई लेकिन एटमॉस्फेयर क्लाउडी है। तो मैं वहाँ पे वो जाता हूँ और दरवाज़ा ओपन करता हूँ तो देखता हूँ तो क्या, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। तो मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ जो है वो बेड के नीचे डाल देता हूँ और पैसे वहाँ पे रख देता हूँ। आई फेल्ट हीज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने फील किया, क्या फील किया, उसकी जो ब्रीदिंग जो है वो मेरे हाथों पे फील की, वो बहुत ही शांति से सोया हुआ था। आई रिमाइंड स्टील फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो मैंने क्या है, पैसे जो है वो अंदर डाल दिए। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो मैं जो है वो दूसरे दिन क्या हो गया, बहुत ही देर से उठ गया और मैंने देखा कि अनिल पहले से ही, मेरे ही पहले जो है वो उठ गया है और उसने चाय भी बना लिया है। He stretched out his hand towards me. Then there was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब उसने जो है वो अपना चाय वगैरह सब कुछ बना लिया और उसने अपना हाथ आगे किया और उसके हाथ में क्या था, 50 रुपीज़ थे, 50 रुपीज़ थे। और अब मेरा हार्ट जो है वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि अब देखो ना, वो 1-2 रुपये के बारे में सोच रहा था, लेकिन अनिल ने उसे कितने रुपए दिए, 50 रुपीज़ दिए। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने क्या किया है, कुछ ना कुछ डिस्कवर्ड किया ही है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। वो बोलता है कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, मेड इट मीन्स अर्न, मैंने कुछ पैसे जो है वो कमाए हैं, कल कमाए हैं और अब से मैं तुम्हें क्या करूँगा, डेली
रेगुलरली पेमेंट देते जाऊँगा, ऐसे अनिल हरी सिंह को बोलता है. माई स्पिरिट्स रोज इट मीन्स बिकम वेरी होपफुल. अब जो है मैं बहुत ही आशावादी बन गया था. ओके, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टील वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. जब मैंने वो पैसे जो है मेरे हाथ में लिए तो अभी भी क्या थे, वो बहुत ज़्यादा गीले थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड. अब वो बोलता है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं अब तुम्हें सेंटेंसेस पढ़ाने के लिए सिखाऊंगा. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग. उसे पता था, क्योंकि पैसे जैसे मुझे गीले लगे वैसे उसे भी गीले लगे होंगे, तो शायद उसे पता था कि क्या हो गया है पैसों के साथ, लेकिन उसने एक भी लफ्ज़ नहीं निकाला और अपने आइस में से शो नहीं किया कि हाँ सचमुच ये पैसे बारिश में चले गए थे या कुछ किस तरह से गए थे. कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं. इतना भरोसा अनिल ने जो है वो हरी सिंह के ऊपर दिखाया था. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अब इसने जो है हरी सिंह ने जो है वो हमेशा की तरह बहुत ही अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव स्माइल की अनिल की तरफ. एंड द स्माइल केम बैक इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और वैसे ही स्माइल, बहुत ही रिस्पेक्टिव, बहुत ही केयरफुल और बहुत ही अच्छी स्माइल मुझे क्या हो गई, वापस मिल गई. ओके, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट बिहेवियर, अबाउट नेचर, हाउ द हरी सिंह चेंज्ड. ओके, so I hope you understand this lesson, and if there is any problem, any queries, then ask to me. I will explain it. And stay home, stay safe, take care to all of you.